Question number 26. Find the difference between the lengths of two paint brushes. So यहाँ हमें एक रूलर दे रखा है और यहाँ पर 2 पेंट ब्रशेज है. फर्स्ट हम इसकी लेंथ फाइंड करते हैं. So 7 से 6, चलो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं. 2 से 3 कितना हुआ? 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर. अब देखिए हमारा जो रूलर होता है, देखिए 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है एंड यहाँ पर 5 पार्टीशंस करें. दैट मीन्स 1 रिप्रेजेंट्स करता है 2 को. दैट मीन्स ये हुआ ना, तो ये 2 को रिप्रेजेंट करेगा. इसके बाद वाला 4 को, ऐसे कर कर. सो यहाँ दैट मीन्स ये 2 को रिप्रेजेंट करता है. 5.2. नाउ नेक्स्ट पेंट ब्रश इज दिस. ये यहाँ से यहाँ तक. So 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर 0.2, 3 सेंटीमीटर 0.4, 3 सेंटीमीटर 0.6, 3 सेंटीमीटर 0.8, 3 सेंटीमीटर नहीं, अब ये 4 सेंटीमीटर हो गया. 3 सेंटीमीटर 0.8, देन 4 सेंटीमीटर. सो ये 4.0. Now 5.0 minus 4.0 is equals to 1.2. So option B 1.2 is correct. The given line graph represents the number of animals in a zoo. Study it carefully and answer the following questions. This is for 2 questions, 27 and 28. So elephants है 20, tiger है 35, monkeys है 25, rabbits है 15 and deer है 20. Now how many more monkeys and deer together than elephants are there in the zoo? So monkeys है 25 and deer है 20. 25 plus 20 is 45 and the number of elephants is 20. So 45 minus 20 is 25. So option A is correct. Next question. Find the fraction of number of rabbits to the number of tigers. So number of tigers are 35, denominator हो गया 35 and rabbits are 15. So numerator हो गया 15. अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं. So 35, इसको हम लोग 5 से करेंगे. 35 हो गया 7 and 15 हो गया 3. 3/7. ये हमें ऑप्शन डी में दे रखा है. So it's correct. Find the greatest 6-digit number formed by using the digits 5, 2, 4, 1, 0 and 6. Using each digit at least once. Estimate your answer to nearest hundreds. So जो greatest digit होगा 6-digit number, greatest 6-digit number होगा 6, 5, 4, 2, 1, 0. Now अगर हम लोग इसको nearest hundreds करेंगे तो देखिए 210 है. 210 is close to 200, so ये बन जाएगा 200. So ये आएगा 6,54,200 जो कि ऑप्शन बी में है. So it's correct. If P divided by Q is equals to 9, Q into R is equals to 135, R plus R is equals to 45, then find the value of P into Q minus R. So देखिए सबसे पहले हम R की वैल्यू फाइंड करेंगे. यहाँ पर 3 R's है. 3R plus R is equals to 45. That means 1 R is equals to 45 divided by 3 which is 15. So R की वैल्यू हो गई 15. Now Q into 15 Q into 15 is equals to 135. That means Q into R means 15 is equals to 135. अभी मल्टीप्लाई का साइन है तो यहाँ जाकर डिवाइड हो जाएगा और ये 15. So Q is equals to 135 divided by 15 which is 9. That means Q is equals to 9. Q is equals to 9. Now अब हम P की वैल्यू फाइंड करते हैं. P divided by Q. Q means 9 is equals to 9. ये डिवाइड का साइन यहाँ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा और 9 यहाँ आ जाएगा. So P is equals to 9 into 9. 9 into 9 is 81. So P is equals to 81. P is equals to 81.
now P into Q. 81 into 9. 81 into 9. 729. 81 into 9 is 729. 729 P into Q minus R. R is 15. So 729 minus 15 is equals to 714. So option A is correct. Question number 31. Which of the following options is arranged in descending order? So यहाँ पर option B descending order में arranged है, so it's correct. Tank A contains 5 times as much as water as tank B. How much water must be transferred from tank A to tank B so that each tank contains 45 liters of water? So friends देखिए, each tank में 45 लीटर्स होना चाहिए वाटर. मतलब टैंक ए में भी 45 लीटर्स एंड टैंक बी में भी 45 लीटर्स. सो 45 इंटू 2 इज 90. दैट मीन्स दोनों टैंक का टोटल मिलाकर 90 लीटर्स ऑफ वाटर हमारे पास होगा. अब देखिए टैंक बी में जितना वाटर है उससे 5 टाइम्स है टैंक ए में. सो टैंक ए को हम 5 अज्यूम कर लेते हैं एंड टैंक बी को 1. अब हम फाइंड करते हैं कि टैंक ए में कितने लीटर्स ऑफ वाटर है. सो 90 टोटल डिवाइडेड बाय रेशियो का टोटल कितना हुआ 5 + 1 6 इंटू 5. तो ये हो गया 15. नाउ 15 इंटू 5 इज 75. सो टैंक ए में हुआ 75 लीटर्स ऑफ वाटर. तो हम लिख देते हैं A is equals to 75. नाउ टैंक बी के लिए भी हम इसी मेथड से फाइंड करेंगे. 90 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 1. 15 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 15. दैट मीन्स टैंक बी में हो गया 15 लीटर्स ऑफ वाटर. यहाँ पर सिंपली पता चल रहा है कि अगर हम 75 लीटर्स में से 30 लीटर्स टैंक बी को दे दे, सो 15 + 30 इज 45. तो इसमें 45 हो जाएगा एंड 75 माइनस 30 इज 45. तो दोनों में 45 लीटर्स हो जाएगा. सो 30 लीटर्स वाटर हमें देना होगा टैंक बी को टैंक ए में से. सो दैट मीन्स ऑप्शन ए इज करेक्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज करेक्ट? तो यहाँ पर करेक्ट है ऑप्शन सी. सो इस पर हम टिक कर देंगे. विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स डू नॉट हैव एनी लाइन ऑफ सिमेट्री? इसमें 1 लाइन ऑफ सिमेट्री है, इसमें भी लाइन ऑफ सिमेट्री है, इसमें भी लाइन ऑफ सिमेट्री है, पर ऑप्शन बी में लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है. सो इट्स करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ मेनी एंगल्स आर लेस देन 90 डिग्री इनसाइड द गिवन फिगर? सो 1 एंगल, ये 2 एंगल एंड ये 3rd एंगल. 3 एंगल्स है जो कि लेस देन 90 डिग्री है इस फिगर में. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 36. द पॉपुलेशन ऑफ सिटी X इज 19,87,321 and that of city Y is 80,51,310. Which of the following cities has large population and by how much? So city Y में ज़्यादा population है, so ऑप्शन बी और सी तो नहीं होंगे, ऑप्शन ए या डी में से कुछ होगा. अब बाय हाउ मच फाइंड करने के लिए हम 80,51,310 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 19,87,321. सो जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 60,63,989, जो कि हमें ऑप्शन ए में दे रखा है. सो इट्स करेक्ट. नेक्स्ट. इन अ बर्थडे पार्टी देयर वर 210 guests. Out of
These 3 by 7 were males. How many females were there in the party? So ये फाइंड करने के लिए पहले हम फाइंड करते हैं how many number of males were there in the party. टोटल गेस्ट थे 210 into the fraction 3 by 7. You write 30. 30 into 3 is equals to 90. That means 90 मेल्स थे पार्टी में. अब टोटल नंबर ऑफ गेस्ट कितने थे? 210 में से 90 मेल्स निकले, तो अब फीमेल्स कितनी होगी? 210 माइनस 90 विच इज 120. So option D is correct. Next question. On Monday, Disha spends 3 hours 40 minutes on studying. On Tuesday, she spends 25 minutes more than the time spent on Monday. Find the total time spent by her on both the days. So first day पे उसने मंडे पे उसने स्पेंड करा 3 hours 40 minutes एंड ट्यूसडे पे उसने 25 minutes मोर स्पेंड करे. सो 3 hours 40 minutes प्लस अगर हम 25 minutes करते हैं सो आता है 4 hours 5 minutes. अब हम 3 hours 40 minutes और 4 hours 5 minutes को ऐड करते हैं. 3 hours 40 minutes प्लस 4 hours and 5 minutes is equals to 7 hours 45 minutes, जो कि हमें ऑप्शन सी में दे रखा है. सो इट्स करेक्ट. टोमेटो केचप बॉटल होल्ड्स 4 liter 675 ml. If Rashi uses 55 ml of ketchup every day, then in how many days will the bottle of ketchup finish? So ये फाइंड करने के लिए हम 4 liter 675 ml को ml में कन्वर्ट करते हैं. सो आएगा 4675 ml डिवाइडेड बाय 55 हम करेंगे. सो हमें इसका आंसर मिल जाएगा विच इज 85. दैट मीन्स ऑप्शन सी 85, सॉरी ऑप्शन बी 85 is correct. Question number 40. A contractor sent 76,95,940 bricks to the for the construction of 70 chambers. If an equal number of bricks were in each chamber, then how many bricks were used for each chamber? So ये फाइंड करने के लिए हम 96,95,940 को डिवाइड करते हैं 70 से, विच इज इक्वल्स टू 1,09,942. So option D is correct. The temperature of 3 objects P, Q, R is respectively 35 degrees Celsius, 45 degrees Celsius and 21 degrees Celsius. Which of the following object is coldest? So coldest वो ऑब्जेक्ट होगा जिसका टेम्परेचर सबसे कम होगा, एंड इन तीनों में से सबसे कम टेम्परेचर है 21 डिग्री सेल्सियस जो है आर का टेम्परेचर. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. Question number 42. Mr. Verma wants to buy a flat worth 35 lakh 68,160. If he has 21 lakh 20,310, then how much more money did he need to buy the flat? So ये फाइंड करने के लिए हम 35 lakh 68,160 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 21 lakh 20,310, which is equals to 14,47,850. So option C is correct. Karan walks around a square park whose side is 50 meters. One day he walked around the park 6 times. How much distance did he walk on that day? So ये एक स्क्वायर पार्क है, इसकी वन साइड 50 मीटर की है. तो स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती है, दैट मीन्स सारी साइड्स 50 मीटर की होगी.
दैट मीन्स अब हम इसके पूरे स्क्वायर का पेरीमीटर फाइंड करेंगे. 50 प्लस 50 प्लस 50 प्लस 50 विच इज 200 मीटर. अब उसने 6 टाइम्स इस पार्क के अराउंड वॉक करा. सो दैट मीन्स 200 मीटर इंटू 6 विच इज इक्वल्स टू 1200 मीटर. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट. Question number 44. Amit bought 15 kg 200 gram onions, 10 kg 50 gram potatoes and 25 kg 80 gram tomatoes. Find the total weight bought by him. So ये फाइंड करने के लिए हम इन सबको ऐड करेंगे. 15 kg 200 ग्राम प्लस 10 kg 50 ग्राम प्लस 25 kg 80 ग्राम इज इक्वल्स टू 50 kg 330 ग्राम. अब ये हमें ऑप्शन ए में मिल रहा है. सो इट्स करेक्ट. The turnover of a certain company is 9,085,241. The amount of turnover can be written in Indian system as 9,085,241. ये तो पूरा अमाउंट है. अब इसमें हम इंडियन सिस्टम में लिखेंगे. सो इसमें हम कॉमास लगा लेते हैं. इसमें ये वंस प्लेस, ये थाउजेंड्स और ये लैक्स. सो अब 90,85,241 जो कि हमें दे रखा है ऑप्शन बी में. सो इट्स करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 46. स्टडी द गिवन फिगर एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन. सो यहाँ पर सबसे पहले हम फाइंड करते हैं क्या है शेडेड रीजन इन दोनों फिगर्स में. सो ये 1, ये 2. नाउ ये और ये मिलकर 1 बनाता है, ये है और ये मिलकर 1 बनाता है. सो इन टोटल ये हो गया 4/8 एंड दिस विल बी 1 2. नाउ ये दोनों मिलकर 3, ये दोनों मिलकर 4, 4/9. Now let's read the options. The shaded fraction of both figures are same. No, this is incorrect. Next, the unshaded fraction of figure 1 is less than the unshaded fraction of figure 2. ये फाइंड करने के लिए हम अनशेडेड फ्रैक्शन निकालेंगे एंड देन हम उनको कंपेयर करेंगे. सो इसका अनशेडेड फ्रैक्शन हो गया 4/8 एंड फिगर 2 का अनशेडेड फ्रैक्शन हो गया 5/9. नाउ अब इनको हमें लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है. सो हम इन दोनों का एलसीएम फाइंड आउट करते हैं. इन दोनों का एलसीएम होता है 72. So 4/8 into 9 is equals to 36/72 and 5/9 into 8 is equals to 72 and numerator आ गया 40/72. Now अब ये दोनों लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट हो चुके हैं. अब 36/72 और 40/72 में से ग्रेटर कौन सा है? 40/72 यानी फिगर 2. सो द अनशेडेड फ्रैक्शन ऑफ फिगर 1 इज लेस देन द अनशेडेड फ्रैक्शन ऑफ फिगर 2. यस, ऑप्शन बी इज करेक्ट. Read the given statements carefully and select the correct option. Statement 1. The value of CMLIX plus MCMVII is equals to 2919. सो ये फाइंड करने के लिए हमें इसको हिंदू अरेबिक सिस्टम ऑफ नंबर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा. सो ये आएगा 959 एंड ये आएगा 1907. सो 959 प्लस 1907 is equals to 2866. पर यहाँ पर तो 2919 दे रखा है. सो स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट. नेक्स्ट, व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड बाय इटसेल्फ द क्वेश्चन एंड रिमाइंडर बोथ आर 1. नो, द रिमाइंडर शुड बी 0. So this is also incorrect. That means option B, both statement 1 and 2 are false is correct.
Our next question number 48. Select the correct option. The smaller angle made by hands of a clock at 6 hours 20 minutes is obtuse. No. The letter H has 3 lines of symmetry, 1 and 2. Only 2 lines of symmetry, so this is also incorrect. The angle whose measure is greater than 90 but less than 180 is called an obtuse angle. Yes, it's known as an obtuse angle. So option C is correct. The given figure is made up of a rectangle and 3 identical squares. So find the sum of areas of 3 squares. Find the area of the unshaded part of the rectangle. So first हम लोग स्क्वायर सम ऑफ एरियाज ऑफ 3 स्क्वायर्स फाइंड करते हैं. ये फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम 1 स्क्वायर का एरिया निकालेंगे. अब देखिए स्क्वायर्स के चारों जो साइड होता है वो इक्वल होता है. 1 साइड इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर हमें दे रखा है. सो 5 इंटू 5 25. सो ये गया 25 स्क्वायर सेंटीमीटर. अब हमें यहाँ पर दे रखा है 3 आइडेंटिकल स्क्वायर्स. तो इसका भी एरिया हो गया 25 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इसका भी एरिया हो गया 25 सेंटीमीटर स्क्वायर. 25 plus 25 plus 25 is equals to 75. सो ए का आंसर हो गया 75 स्क्वायर सेंटीमीटर. नेक्स्ट फाइंड द एरिया ऑफ अनशेडेड पार्ट ऑफ द रेक्टेंगल. सो देखिए यहाँ पर 6 सेंटीमीटर दे रखा है. 6 सेंटीमीटर और यहाँ से लेकर यहाँ तक 6 सेंटीमीटर. फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना हुआ? स्क्वायर की 1 साइड कितनी थी? 5 सेंटीमीटर. ये भी 5 सेंटीमीटर हुआ. दैट मीन्स 6 + 5 11. ये साइड हो गई 11 सेंटीमीटर की एंड ये हमें दे रखी है 15 सेंटीमीटर की. सो 15 इंटू 11 इज इक्वल्स टू 165. नाउ हमें अनशेडेड पार्ट पूछा गया रेक्टेंगल का. सो 165 माइनस हम 25 करेंगे. -25 इज इक्वल्स टू 140 सेंटीमीटर स्क्वायर. दैट मीन्स बी का हो गया 140 सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर. अब ये हमें ऑप्शन ए में दे रखा है. सो इट्स करेक्ट. लास्ट क्वेश्चन नंबर 50. आइडेंटिफाई द 6-digit नंबर यूजिंग द गिवन क्लूज. 6-digit नंबर है तो हम 6 डैश बना लेते हैं. 1 2 3 4 5 6. इट्स 1st digit इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर. स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2. सो हम 2 लिख देंगे. इट्स 100 digit इज द HCF ऑफ 5 and 25. 5 and 25 का HCF होता है 5. सो 100th digit पर हम 5 लिख देंगे. इट्स 10 digit इज 2 more than इट्स 100th digit. 5 + 2 is 7. नाउ ये ए और बी ऑप्शन में से नहीं हो सकता है, होगा ऑप्शन सी या डी में से. इट्स 1000th digit इज ट्वाइस ऑफ इट्स lakhs digit. चलिए हम ऑप्शन में चेक करते हैं. 1 इंटू 2 इज 2. 1 का डबल 2 आ गया. एंड 2 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 1. नो. सो ये भी नहीं होगा. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. फ्रेंड्स, दिस वॉज माई टूडेज वीडियो. आई होप आपको अच्छा लगा. अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल CVZ स्टूडियो को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ऐसे अच्छे वीडियोस पाने के लिए. मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन